सौम्या एंड अनोली। Hi ma'am. Good morning. Good morning everyone. तो तुम्हारा पेट भर गया था इतनी सारा तारीफ लेके लोगों Oh की? my God, Rose ma'am, Rose. I पेट get भरने great के लिए news है। every day. जैसे हाँ, मतलब एवरी डे। I say that line. I'm receiving great news every day और पक्का great news every day. Me too. मैम आज एक क्वेश्चन था आपके लिए. So we are all working on some aspects of our lives, right? जहाँ पे हम हमारा doubt से question है and we are trying to change it positively. So suppose someone has gray hairs and we are constantly avoiding कि we have long, thick, white, black hair and all. What to do when so थोड़ी जगह पे we have that simplicity है यार हमारा and when someone सामने से बोलता है affirms it as well, see, oh you have a gray hair, and you start kind of believing in that. So what do we do at that very moment when somebody सामने से बोल रहा है कि the very thing that you are working on? Yeah, so that is again the victimization mode, that you succumbing to your circumstance or outward reality, है ना? So, oh my God, I'm such an infinitely powerful creator. यही तो हमने आज पढ़ा है, because there have been many people who would come and say this, oh God, तुम्हारी स्किन कैसी हो गई है, इतनी ड्राई और इतनी ज्यादा एक्ने है ना? Whereas हमने अपनी ड्रीम लिस्ट में लिखा है that I want clean, glowing, young skin, Yeah. and I receive compliments from my skin. So it is all about a journey, and these comments from people outside is what is a training ground for us to go back to what we have desired. Otherwise, if things come easy, we will stop valuing it. So it is all right. यही तो हमारा training है. But बार-बार आप अपने creator mode में जा रहे हो. बार-बार कोई बोल रहा है कि ये क्या तुम्हारा पेट बढ़ता जा रहा है. Suppose है ना, and somebody has written that I want a perfect body weight of say 60 kgs, and बार-बार आके कह रहा है that like people so comment on the weights and all that. अगर बार-बार बोला है कि नहीं तुम बहुत मोटी हो गए हो, और तो इस तरह, this is what the training ground is. So these people train and groom us and help us and makes us stronger in a big way. Whenever anything like that comes, because then it reminds you that, oh, like you are a creator, so you have to go back to it. So ये सब तो होता रहेगा. Okay, That so way. affirm that I feel so I love infinitely my powerful. beautiful hair. Yeah, and I Okay. have nice black, thick, good quality hair that I receive compliments for. That way, Yes. we don't have to use the word gray there. Hmm. Yeah. As soon as they say in front of us, right? As soon as they Oh, I'm a point it out, creator. You know that, yeah, wow, it's there in my dream yeah. list. Okay, Yeah, ठीक है. Thank you that so way. much. Have a Thank you. great day, Yes, ma'am. thank you. So, yes, Anoli, such a beautiful name you have. You'll have to unmute yourself. Yes. Good morning and happy new year to all. Thank you. मैम मेरी पूरी लाइफ मैनिफेस्टेशन ही है. मैंने ये ग्रुप ज्वाइन किया, उसके बाद मुझे कब पता किया चला. था आपने? आप कौन सी सिटी से हो? क्योंकि बहुत लोग आपको शायद जानते नहीं होंगे यहाँ पे, को शायद आप पहली बार शेयर कर रहे हैं. पहली बार कर रही हूँ. मेरा नाम अनोली है और मैं अहमदाबाद सिटी से हूँ. और मैं वीएलसीसी में से मैंने लास्ट ईयर 2021 में मैंने कंप्लीट किया है डीडीएचएन कोर्स. और उस टाइम से मैं आपका ग्रुप ज्वाइन किया है मैंने. लेकिन तब मैं इतना फ्रिक्वेंटली नहीं कर पाती थी. फिर मेरा बेबी हुआ, सेकंड बेबी हुआ, उसके बाद मुझे थोड़ा टाइम मिल रहा था, तो फिर मैंने ये कंटिन्यूएशन में मेरा किया, ये ग्रुप ज्वाइन किया. नहीं तो अभी मैं यूट्यूब सुनती हूँ. मुझे ऐसा लगा, तब तक मुझे ऐसा था कि मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, मुझे मेरे पास कुछ नहीं है, अच्छा नहीं है, हमेशा से प्रॉब्लम ही है, चाइल्डहुड से ऐसा ही था. लेकिन अभी मैं देखूं, जब ग्रुप ज्वाइन किया, सुना, और मैंने सब कुछ मैनिफेस्ट किया है, बचपन से किया है, वो मुझे लग रहा है. मैंने जब बचपन बहुत दुख देखे बचपन में, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो मैंने दुख देखे ना, इसीलिए दिखी थे. जो आप बोलते हो ना कि आप वो अगर बुला करोगे तो फिर वो गॉड वापस ही देगा, क्योंकि आप उसमें से कुछ नहीं सीखे. जब मैंने वो स्टॉप किया तो आई हैव मैनिफेस्टेड माय हाउस.
my car, my kids are super intelligent. I can say they are super intelligent. मेरा बड़ा बच्चा जब 1.5 साल का था, तब वो एशिया, पूरे वर्ल्ड के मैप्स, उसके कैपिटल्स, उसकी करेंसी, उसके प्राइम मिनिस्टर या व्हाटएवर, वो तब से बोलता था। वो आज भी, मैं उसको पढ़ाती नहीं हूँ, वो अपने आप देखता है। वो टीवी देख, मैं ऐसा ही मैनिफेस्ट करती हूँ, मैं उसको नहीं बोलती। मैं ऐसा ही मैनिफेस्ट करती हूँ कि मेरा बच्चा जो भी टीवी में देखता है, अच्छा ही देखता है, नॉलेज वाला ही देखता है। तो मेरा बच्चा ध्रुव राठी देखता है, बायनॉक्स देखता है, उसको बायोलॉजी में सब पता है। जब मैं पढ़ती थी डीडीएचएन कोर्स में, तब मेरा बच्चा, उसको सब, वो जो भी मैं बोलूं, विटामिन बोलूं, जो भी बोलूं, वो मुझे बता देता था कि उसका आंसर ये है। जब मैं एग्जाम दे रही थी और वो पीछे से देखता था, तो कभी कभी वो आंसर दे देता था कि अच्छा ये मम्मा, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। वो बोथ किड्स आर वेरी इंटेलिजेंट। एक और बात, आई एम लिटिल बिट हेल्दी। और मैं बचपन से, मुझे ऐसा ही था कि मैं मोटी हूं तो मैं अच्छी नहीं लगती। फिर हेल्दी मैं नहीं बोलते उसको, ओवरवेट बोलते हैं। हेल्दी मतलब फिट एंड फाइन होना। चबी चबी हाँ हेल्थी, टेन हाँ। केजी मेरा ज्यादा है। तो मुझे ऐसा ही था, मैं अच्छी नहीं लगूंगी। कि कोई और पहनता था तो मुझे ऐसा लगता उसको अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा नहीं लगा। अभी आज सुबह, आज आज 1 बजे में हम थाईलैंड से वापस आए। इस बार मैंने, जब भी मैंने कोई भी ऑर्डर किया है, जो भी मैंने, सब कुछ मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। और मैंने यही मैनिफेस्ट किया था, मैं जो भी मंगवाऊंगी वो बहुत ही सुंदर होगा और मेरे पे बहुत अच्छा लगेगा। और सच में ऐसा हुआ कि एक और वो सब मुझे बजट में चाहिए था, कि मुझे हाई एंड में नहीं जाना था। तो सारे 699 799 के मेरे वन पीसेस थे, और वो बहुत अच्छे लग रहे थे। और उसके मैचिंग, उसको मुझे लेगिंग्स भी मिल गई। और उसके हिसाब से मेरे पास सारी इयरिंग्स थी। तो मैंने मैनिफेस्ट ऐसे ही किया था, मेरे पास जो भी है वो सारा कुछ मैचिंग भी हो गया, अच्छा भी लग रहा है। और मैं बहुत खुश हूँ, मैं इंजॉय कर रही हूँ। और ये ट्रिप मेरे लिए ही है। तो मैंने बहुत एंजॉय किया। और मैं जहां पे भी जाती थी, तो सब लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट देते। और कल तो लास्ट डे था मेरा, तब मुझे ऐसी कॉम्प्लीमेंट मिली। मैं शॉपिंग कर रही थी, तो पीछे से मेरा बड़ा बच्चा है, उसने मुझे बुलाया ना, तो उस लेडी ने बोला, ओ यू आर मैरिड, यू डजंट सीम्स लाइक यू आर मैरिड, यू, आई थॉट यू आर अनमैरिड, यू आर लिटिल गर्ल। नो नो, आई एम मैरिड। सो दैट वाज लाइक, जो मैंने सोचा था वो सारा हुआ। और सबसे हम्म बड़ी मैनिफेस्टेशन है मैम, मेरा हस्बैंड मेरा मैनिफेस्टेशन है। बचपन में बहुत दुख देखे थे। मुझे ऐसा था, कोई ऐसा बंदा हो कि जो मुझे बहुत पैम्पर करे, मेरे साथ रहे, मुझे डांटे नहीं, मुझे समझे। तो ही इज एग्जैक्टली लाइक दैट। अगर मेरी गाड़ी कहीं पे, मैंने हो गया, कुछ हो गया, इट्स ओके, तुझे कुछ नहीं हुआ ना। ओ माय गॉड, मैं तो पहले, पापा तो बोलते थे तो मैं डरती थी, लेकिन कुछ नहीं। मैंने बोला मुझे ये, अरमानी की ये वॉच चाहिए, तू ले ले। मुझे ये चाहिए तो तू ले ले। तू, मुझे ये करना है, तू ले ले। सब कुछ, ये मेरा बहुत बड़ा मैनिफेस्टेशन है, मेरा हस्बैंड। और मैंने ऑलवेज पैसे स्पेंड करती थी ना मैम, तब मुझे ऐसा लगता था कि ये बहुत स्पेंड कर रही हूँ। लेकिन अभी मैं स्पेंड करती हूँ ना, तो मैं ये अफर्म करके करती हूँ मैम। तो इससे ज्यादा पैसे वापस आते हैं। मैं अर्न नहीं करती, लेकिन मैं देखती हूँ घर में वापस आते हैं। दिस इज अमेजिंग। थैंक यू फॉर शेयरिंग। और शेयर किया करो जब भी कुछ हो। दिस इज वेरी वेरी एनकरेजिंग फॉर पीपल जिनके बच्चे बहुत टीवी देखते हैं, बैठ के पूरे पूरे दिन। सो आप अगर ये बोल रहे हो उनको कि जो भी मेरा बेटा देखता है टीवी पे, दैट्स ऑलवेज नॉलेजेबल, इट्स अ वेरी गुड शो विच इज गिविंग हिम अ गुड लर्निंग, है ना। सो ये बहुत अच्छी चीज है। ऐसे ही तो कर करके वो ट्रू रियलिटी बन जाता है, जो हमारी सेल्फ टॉक होती है वो मैनिफेस्ट हो जाती है। सो मैं यस, गुस्सा थैंक यू बहुत सो करती मच थी, फॉर शेयर। गुस्सा बहुत करती थी, लेकिन मैंने मैनिफेस्ट करके मैंने वो कम कर दिया। और हाँ। मुझे और दिखाना है आपको कि मैंने अपने घर में, जब मैं मैनिफेस्ट, इंटेंशन थी नहीं, लेकिन ऐसा सोच रही थी, मुझे मेरा घर ऐसा चाहिए, बहुत बड़ा हॉल चाहिए, बहुत बड़ा किचन चाहिए, और ओपन थिंग चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ। यस, ओके, दिस इज माय हॉल, लिविंग एरिया। इट्स ब्यूटिफुल। दिस इज माय किचन, हम्म एंड दिस इज ओपन एरिया फ्रॉम माय हाउस, टोटली ओपन। Yeah, looks beautiful. So good, Anoli, that you manifested this house. मैनिफेस्टेड दिस हाउस है ना। अनइंटेंशनली। इन हाँ एवरीडे मैं बोलती थी कि एक दिन मेरे पास बहुत बड़ा घर होगा,
और इस तरह से होगा, तो मैंने मैनिफेस्ट किया मैम। Wow, amazing, incredible. Hats off to you. Very good. Enjoy love, luxury, prosperity, while at the same time be a nice person, which you already are. है ना? Amazing. Thank you for sharing, and God bless you with more and more. Thank you, ma'am. Thank you. Yes, सौम्या का हो गया. दीपा, finally. Yes, ma'am. Finally. Good morning. Happy New Year, everyone. Thank you. हाँ मैम। मैम आपने जो बताए थे कि हमारे चारों पैरामीटर है, हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, मनी, रिलेशनशिप, सब में पैरामीटर ऊपर गए। मेरे 2 मैजिक चेक एनकेश हुए। फिर मैम रिलेशनशिप में मैं वो मेरा वो आपने जो बोला था कि वो माय वोकेशन इज माय वैकेशन, माय लाइफ इज अ सेलिब्रेशन, माय लाइफ इज इजी एंड एफर्टलेस, तो वो तो जैसे कि पूरे एक सांस में आ गए हैं पूरा वो मैजिक इंग्रेडिएंट्स, वो हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, अचीवमेंट, विक्ट्री, तो फिर वो सभी जगह पे मैनिफेस्ट हो रहे हैं। तो फिर रिलेशनशिप में मैं अपनी तरफ से एकदम सिक्योर हो गई हूँ कि मुझे ये चाहिए तो मुझे मिल रहा है। अब वो नहीं मैटर करता कि सामने वाला कैसा है, तो माय ऑल रिलेशनशिप इज हैप्पी एंड मीनिंगफुल। तो फिर वो एक मैम है। और फिर मेरे हस्बैंड, मेरी मम्मी और मेरी डॉटर दोनों ग्रेटिट्यूड जोन में है, तो फिर वो मेरे लिए बड़ा है कि वो भी सब बताते नहीं है, पर कोई मैं सिखाती को ऐसे करो, तब सब बोलते नहीं नहीं हमने तो किया, ऐसा होता है। मेरी मम्मी भी, मैं बोलती हूँ कि नहीं नहीं आप दूसरों पर नहीं ब्लेम करो, अपने पर वर्क करो, तो फिर नहीं नहीं मैंने किया है, देखो मैंने प्लेटफॉर्म का नल ऐसे अच्छा कर दिया, वहां से सिंक में कुछ होता था वो अच्छा हो गया, मैं तो मेरी कुक को भी सिखाती हूँ। फिर वहां पे मैम और वेल्थ में तो मेरे हस्बैंड और मैंने जो भी जहां भी अभी मेरे पास डाइट के लिए लंदन से क्लाइंट है, ऑस्ट्रेलिया से क्लाइंट है मैम, अमेजिंग। सीखना पड़ता है, अब मुझे थोड़ा अपने को जोन में रखना पड़ता है। फिर मैं मेरा स्टडी, तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं अब नहीं मेरा मास्टर करना है तो नहीं कर पाऊंगी, नहीं होगा। 6 मंथ तो मेरे ऐसे ही चले गए कि वो ट्रैक में लाने के लिए। फिर मैंने सब जहां मैं भी जाती थी तो वही वही बस मेरी कॉलेज वाली दिखती थी, तो मेरे लिए वो भी क्लू था कि तुझे करना है। यूनिवर्स मुझे पकड़ पकड़ के दिखाते कि नहीं तुझे करना है। तो फिर मैंने अभी मेरी एक फर्स्ट इंटरनल एग्जाम दी मैम, वो अच्छी गई, कॉन्फिडेंस अच्छा है। अब रोज मैम मैजिक इंग्रेडिएंट, मैग्निफिसेंट आउटकम, मैजिक डस्ट, मैजिक वॉन, ये तो अब जैसे कि कुछ भी हो ये तो करना ही है। और मेरे बच्चों में भी इतना फर्क है, वो पहले से वो भी एक है कि माय चिल्ड्रन इज हैप्पी, हेल्दी, रिस्पॉन्सिबल एंड ऑलवेज टू बेटर चॉइस। तो फिर वो भी सब दिख रहा है कि उनके भी एग्जाम रिजल्ट इतने अच्छा आ रहे हैं। फिर मैं मैजिक स्टोन है तो एक ऐसी फीलिंग्स हो गई कि मैं जहां भी जाती हूँ पता नहीं कहाँ से मैजिक स्टोन वो पीछे आ जाता है कि नहीं मुझे भी लेके चलो, तो पता नहीं 4-5 बार ऐसे देखा तो वो पहले से ज्यादा शाइन करने लगा है मैम। फिर हम कार में या बाहर जाते हूँ तो मुझे वो सन दिखता है तो ऐसे ऐसा वो सन की धूप आती है, ऐसा लगता है कि मुझे वो ऐसे धूप से ऐसा लगता है कि मुझे याद करना है, वो मुझे बुला रहा है। लाइक पता नहीं मैं वो नेचर एलिमेंट से मैं जो भी मांगती हूँ वो बोल देती हूँ कि आज ग्रेटिट्यूड कम लिखे हैं ज्यादा लिखे हैं पर मुझे इतना तो चाहिए। तो फिर मैम वैसा मैंने आपने भी वो भी बोला आप फिट फर्म मस्क्यूलर, तो फिर वो भी एक है कि मेरा मसल मास इंक्रीज हुआ है और फैट मास ऐसे भी कभी एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिलता, फिर भी आई एम फीलिंग कि नहीं वो फर्क आ रहा है मैम। हेड्स ऑफ यू, थैंक यू माय फैमिली एंड Thank यू। you. Hats off to you. Why hats off to me? I mean, नहीं like, this is मैम वो आप amazing. खींच खींच के ले आते हो, हम तो कभी भी नहीं आते कभी, पर वो है ना आप जो बोलते हो ना कि नहीं नहीं ऐसे रहना है, ऐसे मूवमेंट आएंगे, एक्चुअली जो आप मूवमेंट बोलते हैं ना वो सीखनी चाहिए कि वो मूवमेंट आते पर उनमें से कैसे अप होना है, वो एक बड़ी चीज है कि आप उसमें रहो, कभी नहीं लिख पाते, कभी जब आपको लो पर एक हो तो आपकी थैंक यू हाँ बोलो. हाँ. हाँ आपकी फीलिंग आप एक बंद कर रहे हो कि नहीं मुझे इस फीलिंग में रहना है। अभी 1 मंथ से मैं कुछ लो जोन में नीचे नहीं गई हूँ, वरना ऐसा होता था कि 10 दिन तो एक दिन पूरा तो आपने बोल दिया, और जो भी जहां भी सेशन शुरू करते हैं तब वही आता है, आप बोल देखो आपके लिए आया है तो वो मेरे लिए ही है। मैंने शुरू किया मेरे लिए, तो फिर वो एक अडॉप्ट करना, तो वो फीलिंग थॉट सब चेंज हो गया है मैम। थैंक यू मैम। हैट्स ऑफ की रीवायरिंग हो गई है आपकी जिंदगी की. अब हाँ बहुत मैम। अच्छा और बड़े बड़े काम करने हैं. So थैंक यू मैम। amazing and thank you and God bless you with the best more and more कि आप बहुत ज्यादा शेयर करो और आपकी जिंदगी में और मैजिक्स एंड मिरेकल्स होते जाएं.
थैंक यू मैम। अभी मैंने 133 ग्रेटिट्यूड में लिख लिए, पर आज तो बस यूनिवर्स को आई लव यू बोला है हैप्पी न्यू ईयर पे। मुझे ऐसा लगा कि हर रोज हम मांगते ही रहते हैं, तो फिर कभी हमें भी लव देना चाहिए गुजरात था। में ऐसे होता है, आज का दिन जो अन्नकूट वाला दिन है, तो इसमें हैप्पी न्यू ईयर होता है, इसीलिए एक हफ्ते की छुट्टी होती है। अच्छा। थैंक यू मैम। Oh, wow, amazing. Thank you so much. Then we have Prabhashini. Oh, I'm so happy. I'm also listening to you for the first time. All of us, rather. Thank you so much, ma'am. I'm in your Thanks. group. Uh-huh. I'm a government school teacher, but I am Which city? from Odia. क्या मैम? From Orissa. From Orissa, जयपुर, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट। Oh, okay. अच्छा, मैं 1 मंथ से आपके साथ जुड़ी हूँ और आपको Okay. फॉलो करती हूँ। कभी कभी लाइव सुनती हूँ और यूट्यूब में सुनती हूँ। Exactly what you are speaking and during the classes, I'm writing all those things in my notes. But I want some specific help for my skin issue. I have written that क्या वो ड्रीम में thank you for my clear, clean, healthy, fair, glowing skin all over the face and body. Is it correct? या स्किन ही लिखो, और ऑल ओवर द फेस एंड, हाँ बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। मतलब स्किन, अगर आप स्किन क्योंकि भी मेरा लिखोगे, फेस एंड और, बॉडी नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। अच्छा हो जाएगी। हाँ, और एंड एक है जस्ट मेरे राइट पर, दैट आई एम रिसीविंग हाँ सो मेनी कॉम्प्लीमेंट्स फॉर माय स्किन। हाँ या थैंक यू। और एक है मेरे पति ना बिहार में जॉब कर रहे हैं, मैंने उनका कुछ इश्यू हुआ तो बिहार में उनको ट्रांसफर हो गया। मैं उड़ीसा जयपुर में मेरी बेटी के साथ अकेली रहती हूँ, तो मैं उनका जॉब यहीं जयपुर में किसी जगह पर हो जाए ये चाहती हूँ। तो इसके लिए मैं लिखी हूँ, थैंक यू सो मच फॉर माई हस्बैंड is doing job at Jaipur, so we are living together a happy magical millionaire life. या दिस इज अमेजिंग। बहुत अच्छा लिखा है आपने। इसका मतलब है थैंक आप यू बहुत सो मच। शिद्दत से हमारे सेशन सुनती हैं, है ना? हाँ है ना, ये तो सुनती हूँ। अब इससे नो पहले लाइक भी इन अ मैं थोड़ा मंथ्स बहुत, टाइम इस तरह के सेंटेंसेस फ्रेम करना, ये बहुत, दैट मीन्स इट स्पीक्स अबाउट योर सिंसियरिटी। सो थैंक नहीं यू सो बहुत मच। चेंज लाया है। मैंने पहले होपोनोपोनो 1 साल से होपोनोपोनो कर रही थी, उससे मेरे हस्बैंड के साथ जो भी ब्रेकडाउन था, मैंने हम दोनों जुड़े हुए थे लेकिन बीच बीच में खिटपिट खिटपिट जो कि बहुत बड़ा हंगामा हो चलता जाता था रहता हम था, दोनों के बीच हाँ। में। तो होपोनोपोनो में 1 मंथ में ही उसको मैंने इतना अच्छा हमारा रिलेशनशिप हो गया कि मैंने इमेजिन भी नहीं कर सकता। कोई 1 मंथ में उनका वे ऑफ टॉकिंग और मेरा एक्सप्रेशन, मेरा बिहेवियर, हम दोनों का, मैं घर में थी और वो बिहार में थे, लेकिन हम दोनों की इतनी सारी मैंने जो बॉन्डिंग नहीं थी, इतना अच्छा हो गया 1 साल से। मैंने भगवान को बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। और मैं ड्रीम होम एक चाहती हूँ जो मेरा पास नहीं है, मैं भाड़े के घर में रहती हूँ। तो थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आई एम लिविंग इन माई लग्जरियस ड्रीम होम, हैविंग गार्डन इन फ्रंट ऑफ एंड सर्वेंट्स क्वार्टर, ऐसे लिखी हूँ, विथ माई फैमिली, ऐसे लिखी हूँ। वाओ, बिल्कुल परफेक्ट है। एवरीबडी इज गेटिंग आइडियाज फ्रॉम यू आल्सो। यस, थैंक यू सो मच मैम। और luxurious एक, and हाँ और एक चाहती हूँ मैं, अब जो कल बोले यू चूज टू हीरो फॉर योर लाइफ, मैं जब से आपको सुनी हूँ, जब से पहले दिन से ही आप पर फिदा हो गई। आपकी वॉइस वेव, एक्सप्रेशन वेव, एक्सप्लेनेशन, मैंने ग्रुप में भी मैंने शेयर किया था, जो इतना हार्ट टचिंग आप बोलते हैं ना, मेरे रोम रोम ना ऐसे उठ जाते, गूज़बम्प्स इज कमिंग इन माय बॉडी। मैंने आपकी तरह ही मैं अभी फिलहाल जब ग्रेटिट्यूड सीखा लाइन में आई, 3 मंथ हो गया, लेकिन सीधे मैंने मैजिक बुक नहीं किया था। तो एक दिन सुनी मैं ग्रेटिट्यूड की क्लास पे, दूसरे दिन ही मैं, पहले तो मैं अपने फैमिली को होपोनोपोनो से गाइड गाइड कर रहे थे, वो अचीव भी कर रहे थे। ग्रेटिट्यूड सुनने के बाद मैं बोली ऐसा ऐसा, तो वो लोग बोले मुझे तुम क्यों नहीं क्लास शुरू करती, तुम शुरू करो, हम तुमसे सुनना पसंद करेंगे, और किसी से हम इतना फ्री से नहीं बात कर पाएंगे, आप शुरू करो। तो मेरे फैमिली मेंबर 5-6 लोग जुड़े हैं मेरे से।
मैं आपसे जो सुनती हूँ और दूसरे वीडियो से भी जो भी सुनती हूँ मैं उनको गाइड करती हूँ, और उनको भी इधर भी ऐड किया है मैंने उनको। मैं लिखने में उनको थोड़ा मदद कर देती हूँ, लेकिन मैं आपकी तरह मास्टर बनना चाहती हूँ। आप जैसे एक्सप्लेनेशन देते हो मैं उसके लिए ना, मैं अपने ड्रीम लिस्ट में वो वाला इंक्लूड करना चाहूंगी। थोड़ा हाँ, एक्सप्लेन कर दीजिए वो तो वर्ड्स। वो कल जैसे किसी का मैसेज आया था तो उन्होंने भी ये बोला दैट यू माय हीरो एंड आई वांट टू हैव कम्युनिकेशन लाइक यू। तो कल किसी का था तो मैंने कहा था कि मैं मैं सेशन ही में वही बता। थी, हाँ, मैं ही आप ही वही थे, थी। और भी कोई था। अच्छा 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 कल अच्छा 2 जने थे तो उनको आप वही अच्छा। था कि कम्युनिकेशन। तो उसमें सबसे पहले तो आपकी ड्रीम लिस्ट में ये होना चाहिए दैट थैंक यू दैट आई हैव एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल एंड आई स्पीक द राइट थिंग एट द राइट टाइम विद कॉन्फिडेंस। ठीक है। और रात को सोने के पहले आप ये इमेजिन करो विजुअलाइजेशन में दैट, मतलब ये ड्रीम लिस्ट पे तो हम वर्क करेंगे ये अभी लगातार, that you are giving a speech or you're talking to people and everybody is giving you a standing ovation and they are applauding what you have spoken and they are complimenting you on this। और बस आप देखना धीरे धीरे अपने आप ऐसा हो जाएगा, नहीं, बट एक और हाँ ये हो प्रैक्टिस इसके जाएगा, लिए। ये हो रहा है। मैं एक बार इसके लिए मेरे जॉब में इसके यूज की, 2 दिन लिखी मैं इसके लिए। मुझे रिसोर्स पर्सन के तौर पर मुझे एक ड्रीम था, मैं रिसोर्स पर्सन बनूं और अपने टीचर्स को गाइड करूं। लगभग 150 टीचर्स थे उस रूम में, और मैं हर चीज को ग्रेटिट्यूड देके लिख के गई थी और बोल बोल के रास्ते में भी गई। मैं भगवान से बोली थी 10 मिनट, एटलीस्ट 10 या 15 मिनट्स में कंटिन्यूअसली बोल पाऊं। तो आधा घंटा कैसे कि चला गया, मेरे मुंह से ऐसे लगा जैसे सरस्वती माँ मेरे कंठ में बैठ गए, और मैं बोलती गई। लोग भी इतने आराम से सुनते गए, और मुझे इतना अच्छा लगा। जो भी मेरे हायर पोस्ट में थे वो भी बोले अच्छी तरह से प्रिपरेशन करके आई है, जो कि मुझे ट्रेनिंग भी नहीं दिया गया था उसके लिए। मैं ये ग्रेटिट्यूड अपने ब्रेन को, आईज को, टंग को, टीथ को, सभी को मैं दी थी। और मैं अभी ड्रीम लिस्ट में उसी को इंक्लूड करना चाहती थी, इसलिए आपसे पूछा मैं। हाँ, वेरी गुड। और एक और चीज आप कर सकते हो दैट मिरर वर्क प्रैक्टिस। मिरर के सामने आप अपने आप को कोई भी टॉपिक दे दो, जैसे यू कैन गिव से मैजिक डस्ट एवरीवन, है ना, एज अ टॉपिक, या आपकी जो सिटी है जयपुर इन उड़ीसा, तो आप अपनी सिटी के बारे में कम से कम 10 मिनट के लिए बोलो शीशी के सामने बैठ के। उससे देखना आपका कॉन्फिडेंस, आपके सेंटेंस फॉर्मेशन, आपका डिक्शन, आपके वर्ड्स, आपका फ्लेयर इन टॉकिंग कम्युनिकेशन वो परफेक्ट होता जाएगा। ये बहुत बड़ी क्या बोलना प्रैक्टिस है? होती है। सिटी के जो लिए भी, क्या बोलना है? सपोज आपकी सिटी, जैसे मैं अगर दिल्ली के बारे में बोलूं दैट हाय दीप्ति, जैसे मैं शीशे के सामने बैठी हूँ तो मैं बोल रही हूँ हाय दीप्ति, आई एम सो हैप्पी दैट यू नो आई एम लिविंग इन दिस ब्यूटिफुल सिटी ऑफ न्यू दिल्ली, दिस इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे सेंटर गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों हैं, इतनी मजेदार सिटी है, इतने बड़े बड़े रोड्स हैं, देर आर सो मेनी फ्लाईओवर्स दैट मेक यू नो लाइक द ट्रैफिक सो इजी, एंड देयर इज अ दिल्ली मेट्रो दैट कनेक्ट्स टू एवरी कॉलोनी, इतने अच्छे कैफेज एंड रेस्टोरेंट्स है, सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स यहाँ मिलते हैं। पहले ये होता था कि हमको अगर सपोज कोई बैग खरीदना होता था ब्रांड का तो वो बाहर से मंगवाना पड़ता था, जाना पड़ता था। अब यहाँ पे 2 मॉल्स है, एक चाणक्य है, एक एम्पोरियो है, जहाँ पे जाके आप कुछ भी खरीद सकते हो। यू नो लोग इतने अच्छे हैं, जहाँ मैं रहती हूँ वो वाले कॉन्डो बहुत अच्छा है, मजा आ जाता है, इतना लग्जूरियस और इतने अच्छे नेबर्स है मेरे कि कभी सोचना ही नहीं पड़ता। इस तरह कर करके आप अपने शहर के बारे में बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ। इट कुड बी अबाउट योर चिल्ड्रन, इट कुड बी अबाउट योर होम वेयर यू लिव, या किसी भी चीज के बारे में। फ्यूचरिस्टिकली भी अगर बोलना है आपको, फ्यूचर प्रेजेंस में, ये सोच के कि मैं इतने लग्जूरियस ब्यूटीफुल हाउस में रहती हूँ, इतना लार्ज हाउस है मेरा, सामने इतना सुंदर गार्डन है, मजा आ जाता है कि शाम को बाहर बैठ के चाय पीने में मजा आता है। मेरे हस्बैंड साथ में ही रहते हैं, बिल्कुल टाइम से घर आ जाते हैं, उनका बिहेवियर इतना अच्छा है, ही सो लविंग एंड केयरिंग, मुझे अच्छी अच्छी सरप्राइजेस देते हैं, बच्चों को होमवर्क कराते हैं, बहुत प्यार करते हैं अपनी फैमिली से। मैं इतनी अच्छी दिखती हूँ, यू नो समय के साथ साथ आई हैव बिकम सो ब्यूटीफुल। मैं अपनी स्किन के लिए बहुत प्राउड हूँ। और हमारा घर जो है, सारे लोग जो हमारे घर में आते हैं हमको बहुत कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि किस तरह से, कहाँ से इंटीरियर कराए, इतना बड़ा घर कैसा है, वाह, इस तरह थैंक से यू आप सो बोलते मच मैम, थैंक यू। रहो। और या एक है, और एक मेरी बेटी के लिए, वो मेरी बेटी बहुत अच्छा पढ़ती है।
मैं उसके लिए लिखी हूँ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई एम सो ग्लैड फॉर माय डॉटर गुनगुन इज टॉपर ऑफ हर स्कूल इन 10th बोर्ड एग्जाम 2024 ICSE easily and happily by having 99% लिखी हूँ। वो मार्क लिखना है या उसको छोड़ देना है? लिख दो, but then like write that she's a very sincere, responsible and a nice हाँ वो person. लिखती हूँ, हाँ वो लिखती हूँ, आप है बोले ना? ना वो हाँ, लिखती लिख दो हूँ। आपको मार्क्स लिखना है, बट उससे उस पे प्रेशर नहीं आना चाहिए ना, नहीं वो आप अपने पे आप आना से चाहिए कि पढ़ती है। आप वो लट लेके उसके पीछे पड़े रहो, दैट नहीं नहीं सिट एंड स्टडी, बिकॉज हर बच्चे का एक मिशन होता है और वो वहां जरूर जाता है. So you just have to think about that she's going into the line in the stream of her choice and making the parents, school and the teachers so proud. तो Just be इसके like लिए जो that. 99% लिखना है, नहीं लिखना, छोड़ दूं उसको? आज नहीं रहने दो. लिखी उसको। हाँ, तो नहीं. और एक ड्रीम है उसके लिए, उसका एक ड्रीम था आप और ये उसका लिखो पापा that का। she's got into the college of her choice, है ना? यही हमने कल सीखा था डे नंबर नहीं और 13 एक में. थोड़ी बात बोलना है। उसका ड्रीम था पायलट बनना, लेकिन उसका आई में वो आ गया, उसको लेंस पहनना पड़ गया। तो मैं आपसे सुनी, आप ग्रेटिट्यूड के जरिए चश्मा को छोड़ा, तो उसको बोलती हूँ ग्रेटिट्यूड लिखो चश्मे के लिए, ताकि तुम पायलट के लाइन में जा सकती हो। तो उसके लिए क्या करना है, वो क्या इतना लिखेगी, थोड़ा ह्यूमन बोल। स्ट्रैटेजीज नहीं देनी होती हमको, ठीक है? पावर ऑफ द यूनिवर्स हम सबसे बहुत बड़ी है. तो इसीलिए थैंक यू दैट माय डॉटर हैज फाइनली अचीव्ड अ ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ पायलट एंड शी इज फ्लाइंग लाइक व्हाटएवर, लाइक विद ईज एंड लविंग हर जॉब. दैट्स इट. ठीक है? तो जो ह्यूमन स्ट्रैटेजीज है उन सबको हटा दो, वो अपने आप जो भी ऑब्स्टिकल होंगे वो अपने आप इरेज हो जाएंगे. वाह, और थैंक यू उनको सो बोलो मच। डॉटर को कि वो शाम का सेशन अटेंड करे जो उसका स्कूल में. उसी टाइम में ट्यूशन रहता है, लेकिन मैं जब वो घर होती है मैं उसको सुनाती हूँ, वो सुनती है उसको। हाँ, ग्रेटिट्यूड हाँ. थोड़ा हाफ पेज लिखती है भी वो, अफर्मेशन और हाँ. ग्रेटिट्यूड लिखती है। हम्म. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू. यू आर अमेजिंग. वी डिडंट नो दैट वी हैव समवन लाइक यू इन आवर ग्रुप. आपने कभी शेयर नहीं किया, कुछ नहीं, बट दिस इज कल इनक्रेडिबल. ऐसे और मुझे ही सबसे इंट्यूशन अच्छा ये आया, लगा, मैं आपको इंस्टेड ऑफ कुछ आस्किंग मी दैट मैं क्या लिखूं, आपने अपने सेंटेंसेस बनाए और आप उसको चेक करा रहे हो. लाइक ये बहुत कम लोग करते हैं, बिकॉज एवरीबडी इज मैंने आस्किंग व्हाट शुड आई ऑडियो डू. भी बनाया है, अपने हाँ, अफर्मेशन का ऑडियो भी बनाया है, खाना मैं आपको बनाते बनाते सुनाने के उसको लिए. सुनती हूँ। हाँ सुना। दिस इज अमेजिंग. अभी Congratulations अभी and ड्रीम ड्रीम बोर्ड अभी अभी बनाया है, vision board. बेडरूम गेस्ट रूम से भी कहा, विजन बोर्ड बनाया। Very good. Congratulations and wish you the थैंक यू सो best मच life मैम। possible. You're really working on yourself. And when we work on ourselves, then we see the outward reality changing. So very, very good. Very soon your थैंक यू husband सो will be मच। with you here in Jaipur, थैंक यू Odisha. सो थैंक Thank you so much. Yeah. इट्स माय फर्स्ट प्रायोरिटी। हाँ, हाँ, वो हो जाएगा, बट बहुत रेजिस्टेंस मत करो. ठीक है? मतलब बहुत ज्यादा ये मत सोचो अभी तक आया नहीं, अभी तक आया नहीं, नहीं नहीं क्योंकि नहीं, एक अभी शुरू वो है बंद ना. हो गया है, हाँ, पहले था अभी नहीं है वो बंद, हाँ, वही आएंगे वही. ऐसे। हाँ, हाँ. ठीक है. थैंक यू थैंक सो यू सो मच। मच. यस, थैंक प्रियंका. गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैम, Good morning. जो आज मुझे बहुत सारे मैजिक क्यूज भी मिले इन दोनों की शेयरिंग के कारण। एंड वन थिंग इज, जैसे प्रभासनी जी ने बोला ना, मतलब आई एम नॉट दैट गुड इन लाइक अप्रिशिएटिंग यू वेन एवर यू आर इन फ्रंट ऑफ मी। मेरे मुंह से शायद वो सब निकलता नहीं है, बट इन्होंने जो बोला ना, यू आर माई हीरो, यू आर दिस एंड यू आर दैट, एंड इफ आई एम अ सक्सेसफुल डाइटिशियन, एक्चुअली दैट इज ड्यू टू you only. So your first lecture, which me and Poonam attended together, that gave me the confidence that yes, I can set up my clinic and now I can deal with the clients. So that is something added, but there is a one very nice and very amazing sharing for me and my whole family. Actually, मैम, मेरे इन लॉज में माई फैमिली क्या है कि मेरे जेठ हैं, जेठानी हैं, एंड मेरी नंद है, और माई हस्बैंड इज देयर. सो व्हेन माई हस्बैंड वाज जस्ट 2 years ओल्ड, तो इनके पापा की डेथ हो गई थी. सो इट वाज अ वेरी टफ टाइम फॉर माई मदर इन लॉ कि उन 3 बच्चों की अपब्रिंगिंग करना और कैसे उन्होंने किया. So when I got married at that time, my date was principal in GEMS International in Dwarka. My jethani was in DPS, and my husband was in corporate. He's MC MBA, so he was into job, and it was a very beautiful and very nice family. मतलब मेरे I always used to feel proud of that.
बट समहाउ बीच में कुछ ऐसा हुआ आफ्टर 4-5 years ऑफ माय मैरिज कि दोनों भाइयों में कुछ थोड़ा-सा डिफरेंस आ गया था। एंड माय हस्बैंड ही इज़ जस्ट लाइक, मैं उनको बोलती हूँ आपका भाई राम एंड आप लक्ष्मण हो। तो उनकी फिजिकल कंडीशंस भी, जो बीपी का भी था, थोड़ा बहुत उनका वो चीज़ें चली। एंड मैम वी वर राइटिंग अपना रिलेशनशिप के लिए, भाई-भाभी के लिए, ऑल्दो इट्स नॉट ब्रोकन रिलेशनशिप बट वो वाला चार्म नहीं था उस चीज़ में। सो मी एंड माय हस्बैंड वर राइटिंग नॉन स्टॉप, इतने महीने से लिख रहे हैं एंड वी वर वेटिंग कि यार इतना कुछ कर रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा। एंड डे बिफोर यस्टरडे, मतलब अब थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव हो गया था, माय जेठ जेठानी कॉल्ड अस एंड दे सेड बहुत दिन हो गए, तुम घर पे आओ एंड वी विल हैव गुड टाइम। कल हम सब गए एंड मैम इट वाज लाइक जैसे हमारा पहले होती थी मस्ती, इट वाज द सेम। आफ्टर 8 years अप्रोक्सीमेटली मैं भाभी से मिली, हस्बैंड और मदर इन लॉ जाते रहते थे, मैं और बच्चे मिले एंड मतलब उतना ही प्यार, उतनी ही मस्ती एंड इट वाज जस्ट लाइक अ ड्रीम कम ट्रू मैम। Yeah, सो this is मैम, how things magically unfold. Wow. यस तो इसीलिए मैम, never give up, you know, अगर कोई चीज नहीं आ रही है, very soon it will be yours. It's just never give up. So सो मैम इट amazing. वाज वन ऑफ द ड्रीम वी वर वेटिंग कि यार ये कब होगा एंड इट इज गोइंग टू बी अ ग्रेट शेयरिंग फॉर ऑल ऑफ अस। एंड मैम आई एम अ पर्सन जिसको लगता है कि बिकॉज आई डोंट हैव माय ओन ब्रदर, तो ब्रदर, इनके ब्रदर के लिए मुझे लगता था यार भाई तो हमारे साथ होना चाहिए, क्योंकि उनके खुद के भी बच्चे नहीं हैं एंड दे डेफिनेटली मिस चिल्ड्रन, उनके नहीं है तो हम, मेरे ही 3 बच्चे उनके साथ हैं। तो भाई ने कल बच्चों के साथ इतनी मस्ती की, इतना सब कुछ, भाभी ने उनको खूब भर-भर के ये खाओ, वो खाओ एंड मैम आई वाज़ जस्ट थिंकिंग कि यार लाइफ में फिर से फन आ गया। इट्स लाइक डेज़ हैव कम बैक। सो मैम सीरियसली थैंक यू सो मच मैम। एक्चुअली मुझे Amazing. लग रहा है आपके साथ दोबारा से मैं जब से जॉइन हुई हूँ फैब से, उसके बाद तो पहले आपने मुझे डायटीशियन बनाया और अब आप मुझे मैजिशियन बना रहे हो। सो जो भी चाहिए Magician होता तो आप हो ही. तो जो भी चाहिए होता है वो मिल जाता है मैम। थैंक यू सो मच मैम। It's so amazing. To all those people जिनकी relationships में breakdown है, please be patient, keep writing, don't give up. It might take 1 year, it might take 6 months. जैसे प्रियंका को भी February से अभी तक time लगाना. So इसलिए never give up on your dreams. Okay, there is always the right time when it comes. Yeah, thank you. This is a very powerful sharing, Priyanka. Thank you so much. हेलो मैम। थैंक यू Amazing. मैम। हेलो मैम, Yeah. वो VLCC क्या है मैम, थोड़ा मैं जानना चाहूंगी। वो कोई भी बता देगा, प्रियंका आपको बाद में फोन करके बता देंगी। आपका नाम क्या है? प्रभासिनी। अच्छा, प्रभाषिनी आपको बता देंगे। प्रियंका आप इनसे अच्छा। कनेक्ट कर लेना ग्रुप में, ठीक है? सो यस, मुस्कान, हेलो, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। एवरीवन। कैमरा ऑन कीजिए अपना, ब्यूटीफुल मैम फेस आज पे। नहीं मैम, मुझे कोल्ड हुआ। अच्छा। मैम पहले तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू प्रिया मैम बिकॉज ऑफ हर कंसिस्टेंटली मैं आई कुड डू द प्रैक्टिसेस। आई रियली मैनिफेस्टेड कि मुझे एक गो में सब करना है एंड ये प्रैक्टिसेस अभी हुई व्हेन आई वाज हैविंग एग्जाम इंटरनल सेशंस में। सो इट्स लाइक एवरी डे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे विदाउट अ ब्रेक। तो आई डिस्कस्ड विद प्रिया मैम ने बड़े प्यार से मुझे 2 चीज़ बोली कि यू हैव टू एवरी टाइम से मैग्निफिसेंट आउटकम फॉर द एग्ज़ाम। एंड जो मैं इनिशियल एग्ज़ाम्स में कर रही थी, आई यूज़ टू राइट ग्रैटिट्यूड घर आके, काउंट में ब्लेसिंग्स भी घर आके। इन द मॉर्निंग में हमेशा पढ़कर रिविजन करके जाती थी एंड बट क्या हुआ, व्हेन प्रिया मैम टोल्ड मी तो आई फॉलोड इट टू द टी। मैंने मॉर्निंग में काउंट में ब्लेसिंग्स लिख कर जाती थी। फर्स्ट डे बहुत अच्छा हुआ, मतलब वॉट एवर आई स्टडीड वो एग्ज़ाम में आया। सेकेंड डे सेम हुआ और अच्छा हुआ। थर्ड डे देयर वाज अ माइनर ब्रेक डाउन इन माई हेल्थ, मतलब ज़्यादा था बट आप बोलते हो उसको कम ही बोलो। तो उस दिन ऐसा हो गया था कि आई वॉज नॉट इन अ सिचुएशन टू गिव एग्ज़ाम ऑल्सो। सो बिफोर लीविंग माई हाउस आई हैड, मतलब मेरी स्टडी टेबल पर दोनों चीज़ रखी थी, माई बुक्स एंड माई ग्रैटिट्यूड जर्नल। एंड इट हैज़ हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब मैं रिविजन सब कुछ कर एग्ज़ाम में जाती हूँ। एंड उस दिन आई सेड, अभी मैंने बुक्स को साइड में रखा, पता नहीं कुछ एक अंदर से वॉइस आई, आई स्टार्टेड राइटिंग माई एवरीथिंग, ग्रैटिट्यूड सब कुछ। मेरी हेल्थ वॉज नॉट अलाउइंग मी, मुझे ऐसा लग रहा था क्या मैं कर पाऊँगी, बट मैं उल्टा लिखने लगी एज इन कि अरे वाह ये ब्रेक डाउन आया है। तो मुझे पता चल गया, अच्छा ठीक है, बॉडी भी कभी कभार बीमार पड़ जाती है, अच्छा ठीक है। आई वॉज राइटिंग एवरी गुड थिंग अबाउट माई ब्रेक डाउन। मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था अपने ब्रेक डाउन पे। आई वॉज हैप्पी टू द, मतलब पीक वाले मोमेंट पे।
फिर थोड़ा सा मैंने कम्यूटिंग के रास्ते में, बिकॉज माई कॉलेज इज़ लाइक 2 आवर फार अवे एज यू नो फरीदाबाद, उसमें मैंने पढ़ा। आई वॉज जस्ट रिक्वेस्टिंग यूनिवर्स कि मुझे बस अब थोड़ा सा टाइम दे दो कि मैं पढ़ लूँ अपने एग्ज़ाम के लिए। मैम यू वोंट बिलीव, एग्ज़ाम जो 9 AM शेड्यूल था, मैसेज आता है कि ड्यू टू सम वो पेपर नहीं आया, इट हैज़ बीन पोस्टपोन टू 9:40। आई वाज लाइक ओ माय गॉड, एग्ज़ाम टाइम कभी पोस्टपोन हुआ ही नहीं है। सो वो 9:40 हुआ, मैंने फटाफट अपनी किताबें और ली एंड आई रिवाइज्ड एवरीथिंग। देन हम लिखने बैठे, फिर हमारी जो एग्जामिनर, वी वर वेटिंग फॉर द क्वेश्चन पेपर्स 9:40। एग्जामिनर केम, दे सेड बच्चों अभी तक पेपर नहीं आया है, एग्जाम टाइम हैज़ बीन पोस्टपोन टू 12:30। आई वाज लाइक ओ माय गॉड, मैंने रिविजन कर लिया। देन आई वाज लाइक इतना तो पढ़ लिया मैम, वो चीज़ें मेरे दिमाग में घुस चुकी थी। आई वाज लाइक अब मुझे पेपर कोई भी दे दो, ये तो आई एम गोइंग टू एस इट। एंड ब्रेक डाउन तो मैं भूल ही चुकी थी, इतना ग्रेटिट्यूड से वो कर दिया था। देन इन बिटवीन थोड़ा टाइम था, बिकॉज 9:40 to 12:30 के बीच में आई हैड सच अ प्रोडक्टिव टाइम। आई लर्नड सॉफ्टवेयर फ्रॉम माई HOD मैम। मैम वॉज ऑल्सो लाइक कि तुम्हारा एग्जाम नहीं है। मैंने कहा मैंने पढ़ लिया है ना, बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, एंड बहुत अच्छे से गया। वी वर वर्किंग ऑन अ प्रोडक्ट अनीमिक पेशेंट के लिए, तो मतलब इन बिटवीन भी बहुत अच्छा गया, और वो मैजिकल ही था। ऑल थैंक्स टू यू मैम एंड प्रिया मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। Thank you so much. Yes, Priya ma'am does a lot. I always tell her that. So she मैम handles so शी much. इज सो मच, शी इज सच अ ब्यूटीफुल गर्ल ना। इतने हाँ। दिवाली के दिन भी वो मुझे लिख रही है कि मतलब मेरे पास लाइट कुछ भी नहीं था, बट आई वाज मैम मैंने ये कर लिया, मैम मैंने ये कर लिया। इतनी ओबीडियंट लड़की है ना मैम, शी इज लाइक हैट्स ऑफ टू हर इन दिस बिजी स्केड्यूल ऑल्सो। गर्ल्स के लिए कितना एक्साइटमेंट होता है, हाँ। ये होता है, बट शी इज डूइंग ईच एंड एवरी प्रैक्टिस एंड टेलिंग मी मैम आई हैव डन दिस एंड मैम आई हैव डन दिस। समटाइम्स आई फॉरगेट आल्सो ना कि टू आस्क हर कि तूने किया, बट शी विल से मैम मैंने कर लिया, मैंने कर लिया। एंड जो बोलो जैसे बोलो वैसा करती है, तो फिर मैम मैजिक तो होना ही है। तो हाँ, आई लाइक magic. कंटिन्यूस द टेलर, इट्स नॉट लाइक योर शेयरिंग्स एंड ऑल ना, दीज आर नॉट लाइक सरप्राइज फॉर मी, बट तुम करती ही इतना अच्छे से हो तो इट हैज टू बी डन। लाइक यूनिवर्स विल ऑलवेज लिसन टू यू, यू आर द ब्लेस्ड चाइल्ड। कहती कैसे वो हो रहा है पता नहीं, सौम्या भी बोलती है, कहती मैं ना जो कर मतलब मैंने अगर सोचा भी हो ना तो वही एग्जैक्टली माय वे हो जाता है, पता नहीं कैसे हो रहा है। मैंने कहा वो दैट्स नॉट अ सरप्राइज फॉर मी, होना ही है, बिकॉज यू आर द ब्लेस्ड वन ऑलवेज। Get इतने used to अच्छे से magics and प्रैक्टिस कर रही miracles. हो। Get used to magics and miracles. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, या Yeah. थैंक यू So, मैम, but then थैंक यू keep मैम। creating and try to keep ourselves in the best zone. Very good, Muskan. God bless you, and you get the best college and the best partner in your life, who you want. Thank you so much मैम, lots of Thank you so much. So lots of sharings. I'm so glad that this is, our studies are making such phenomenal, kind of changes in our lives. So do that. Remember today's magical practice is day number 14, which is have a magical day. उसको अभी अभी कर लेते हैं हम जल्दी से, the moment the session ends, है ना? सिर्फ 5 मिनट लगेगा। लिख के करना है लिख के कर लो, आपको बोल के करना है तो आप बोल के कर लो, मन में करना है तो मन में करो, बट सुबह ही करना है। ठीक है, so that's it. Thank you कर लो, so एक छोटा much. सा I शेयरिंग think कर the लो day मैम, is just एक started. एक हाँ बस जी, एक सेकंड का, एक भारती। सेकंड का शेयरिंग करती हूँ। तो मैंने ये हैव अ मैजिकल डे सुबह ही कर लिया था मैम, and हाँ, I wrote exactly what happened today in the session. It was so beautiful. We read 3 books. We read the excerpts from 3 books, ma'am. Then these huge monumental sharings of Prabhasini ji and from Anoli 6 of and them. all of you guys. Hmm. Like it was Yeah. amazing. That's what I manifested today in the magical day. Oh, Yeah. wow. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Amazing. Yes, Bharti, you want to share something? I just have a doubt, ma'am. Actually, according to season, like everyone is having this cold and cough, as me too, ma'am was also having. So, what can we write for that? Like, I also get that I'm so many enjoying my times. perfect health, and my body is healing by day and night every day, and I'm enjoying my Nothing perfect health. particular for that thought. No. Okay, I mean, thank like you. every cell of the body, because it might, yeah. And I'm also one of them. Currently, I'm also healing and I need to put my temperature down. I was running a temperature of 102. Same here, So ma'am. even Same I here. need to, yeah. That's So why. I have also written this only, that I'm enjoying my perfect health and my body is healing by day and night. Every cell of my body is dancing with joy. Yeah. Thank you so much, ma'am. Yeah. Thank you so much. Bye bye. Have fun day.
design Bye, your day ma'am. and see how the miracle unfolds. All Thank you, right, ma'am. bye. Thank Have you, a Thank you, beautiful ma'am. day Thank full you of so Thank you so much. much, ma'am. you, Thank you. ma'am. Thank Thank you, you. ma'am. Thank Bye, you. ma'am. We Thank love you. you. Thank you, Bye. ma'am. Bye. Thank Love you. you so